भाई यहाँ पे मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है? Am I audible? Yes, you are audible. Mm, okay. So, hello, good morning. So, today I'll start uh, our first series lecture, Basics of DNA and RNA Isolation. So, aim of the session will be, first of all, we'll discuss about basics and the principles of DNA isolation from the cells. And second, we'll do the same for the RNA isolation. And then we'll touch upon some of the concepts of purification of DNA and RNA. And at the end of the session, if time permits, we'll discuss some of the practice questions. If I'll not be able to discuss, then I'll provide you a link in which the questions I'll be uploading. And you go through those questions. If you have any doubt, then you can ask me in the another session. Okay, so let's start. Can you hear this video? You can't able to hear? No, it's not audible. Okay. Then I'll tell you. Here it is like we are isolating DNA from the banana. Okay. So this was done by me in my UG. I made a just simple video how we can isolate DNA from banana pulp. Okay. So here you will see we are using here crude extraction method. Crude extraction method means ki whatever DNA will be getting, it will not be pure. I mean, it will have some contamination of banana cells, maybe, or some salts, and some protein and RNA will also be there. So it is like uh, the purpose of isolating banana by this method is just to demonstrate how a DNA looks like. Okay, it is not like we can use it for further processing like sequencing and all. No, it is just a crude method for DNA extraction. Did anyone spoke something? Okay, I'll start. They are using simple household materials here. Like as you can see, first of all, we'll need a banana. We'll isolate DNA from its pulp. It is the motile pestle. We'll mechanically lyse the cells. Spatula and stirrer. This is a tea stainer. We'll filter the components. Absolute ethanol. It will help in precipitation of DNA. I mean, the ethanol is having low dielectric constant than water, right? So जिसका dielectric constant ज्यादा होगा उसकी solubility उतनी बढ़ जाती है. ये तो आपको पता है ना? I mean कम हो जाती है. पानी का dielectric constant कितना है? 81. जितनी ज्यादा dielectric constant उतनी solubility
बढ़ जाती है, इसलिए डीएनए पानी में ज्यादा डिसॉल्व होता है। लेकिन जो इथेनॉल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, जिससे क्या होता है कि जो डीएनए है वो इथेनॉल में डिसॉल्व नहीं होगा, और उसके चार्जेस जो है वो शील्ड हो जाएंगे, जिससे कि वो इकट्ठा हो जाएगा, आई मीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा सोल्यूशन से अलग। हमने तो आइसोलेट करना था, तो वो आइसोलेट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो यू कैन आस्क, डोंट हेजिटेट कि ये रिकॉर्ड हो रहा है ऐसे वैसे, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ऑडिबल नहीं हूँ। नहीं, यू आर ऑडिबल, अभी आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके। सो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, यहाँ तक आ गया समझ। ओके। तो हम चिल्ड इथेनॉल क्यों यूज कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर में पड़ा हुआ इथेनॉल इसलिए नहीं यूज कर रहे, क्योंकि जब फ्रीजिंग होती है, आई मीन लो टेम्परेचर होता है, तो इससे प्रेसिपिटेशन और ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो डीएनए है वो और पास पास आ जाता है, डीएनए के जो थ्रेड्स होते हैं। लिक्विड डिशवॉश वी यूजिंग, लिक्विड डिशवॉश जो है इसमें डिटर्जेंट होता है, तो डिटर्जेंट जो है वो सेल के जो आसपास का, आई मीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डिस्टर्ब करने में हेल्प करेगा। वो सारा बताऊंगी अभी, जिसमें एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ये डिशवॉश ही दिखा रहे हैं, ये डिस्टिल्ड वाटर है, एक्सट्रैक्शन मिक्सचर बनाने में इसका यूज करेंगे। तो एक बीकर में पहले पानी ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर ले लो, नॉर्मल पानी ले लो, वाटर ले लिया। उसके बाद ये टेबल सॉल्ट है, जो हम घर पे नमक यूज करते हैं। ये जो है वो प्रोटीन्स को सेपरेट करने में हेल्प करेगा, सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट ना, सुना हुआ है आपने? तो ये सॉल्टिंग आउट में हेल्प करेगा, आई मीन जो आपको तो डीएनए चाहिए सेल के लाइसेट में से, तो सेल के लाइसेट में तो प्रोटीन भी होंगे, तो उन प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए, आई मीन उसको रिमूव करने के लिए, रिमूव तो नहीं बोलूंगी मैं, सेपरेट ही बोलूंगी, सेपरेट करने के लिए वी विल यूज सॉल्ट। अब मेथोडोलॉजी क्या है? पील ऑफ कर लेना है पहले बनाना को, स्मॉल पीसेस में करके इसको क्रश कर लेना है अच्छे से मोटाल पेसल की हेल्प से। उसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन मिक्सचर बनाने के लिए पानी में सॉल्ट मिक्स कर देना है, और इसको अच्छे से स्टर कर लेना है, लिक्विड डिशवॉश में डाल के एक्सट्रैक्शन मिक्सचर बना लेना। ये एक्सट्रैक्शन मिक्सचर बन गया। इट विल हेल्प टू एक्सट्रैक्ट आउट द डीएनए फ्रॉम द सेल। हाउ इट विल डू? ये करेगा क्या कि हमारे जो प्लांट सेल है उसके बाहर सेल वॉल थी, अब उस सेल वॉल को हमने डिसरप्ट कर दिया मैकेनिकल लाइसिस से, मोर्टल पेसल में उन्हें क्रश कर दिया, तो सेल वॉल उनकी मैकेनिकली तोड़ दी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर, क्योंकि मुझे तो डीएनए तक पहुंचना है, डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है? लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो उनको चेंज करने के लिए, आई मीन लिपिड्स और प्रोटीन्स को डिसरप्ट करने के लिए हम केमिकल यूज कर रहे हैं। ये जो डिश वॉश है उसमें डिटर्जेंट होता है, सो लिपिड्स जो है आपको पता है कि वो डिसरप्ट हो जाते हैं डिटर्जेंट जब हम उनको देते हैं, आई मीन बेसिकली वी आर चेंजिंग द पीएच। फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है एक्सट्रैक्शन मिक्सचर में। अब उसके बाद इसे फिल्टर कर देना है। फिल्टर करने से क्या होगा कि जो आपके सेल्स के डेब्रिस बचे हुए हैं वो स्टेनर के ऊपर रह जाएंगे, और क्योंकि अब सोल्यूशन, क्योंकि अब हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व कर दी है डिटर्जेंट से, तो डीएनए अब हमारा एक्सट्रैक्शन मिक्सचर के अंदर आ चुका है, राइट? तो मतलब सोल्यूशन के अंदर डीएनए आ चुका है, अब वो सेल्स के अंदर नहीं है। अब डीएनए के अलावा
जो एक्सट्रैक्शन मिक्सचर है उसमें प्रोटीन्स भी आए होंगे, बट प्रोटीन्स कहाँ गए होंगे, जो सॉल्ट है उसके साथ इंटरेक्ट किए होंगे और उन्होंने फ्लॉकुलेट कर दिया होगा प्रोटीन्स को, और प्रोटीन्स भी हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स डेब्रिस में ही चले जाएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन को फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद जो नीचे का जो सोल्यूशन है जो बीकर में गया है उसी में हमारा डीएनए है, इस फिल्ट्रेट में। अब इस फिल्ट्रेट को एक पेट्री डिश में रखा है, बीकर में भी रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डीएनए है लेकिन ये पानी में है तो ये मिक्स हो रखा है, आई मीन डीएनए सॉल्युबल इन वाटर, नो, बिकॉज वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो अब क्या होगा कि हम इसमें चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा पानी से। डाइलेक्ट्रिक कम होने से क्या होता है, फोर्सेस बढ़ जाते हैं। फोर्सेस बढ़ेंगे मतलब जो डीएनए है उसके थ्रेड्स के आपस में इकट्ठे हो जाएंगे वो, तो हमारा डीएनए सोल्यूशन से आइसोलेट हो जाएगा। राइट, सो देखिए, जितना भी हमने इसमें फिल्ट्रेट डाला है उसका डबल अमाउंट में चिल्ड इथेनॉल डालना है। जैसे कि मान लो एक एक ढक्कन हमारे पास वो था जो फिल्ट्रेट था, तो 2 ढक्कन उसमें चिल्ड इथेनॉल डाल देना है। ये बहुत ही क्रूड मेथड चल रहा है, अदरवाइज विल डू एवरीथिंग विद प्रॉपर मेजरमेंट्स की। 20 ml है तो 40 ml इथेनॉल डालेंगे, इस तरह से। राइट, अब डीएनए के थ्रेड्स में आयनिक बॉन्ड्स बन गए। अब आपको यहाँ पे डीएनए अच्छे से दिखेगा। आप दिख रहे हैं शाइनी व्हाइट थ्रेड्स, दीज आर डीएनए। अब प्रिकॉशंस इसके यही होते हैं कि आपको अच्छे से मिक्स करना है। चिल्ड इथेनॉल जो है चिल्ड ही यूज करना है, गर्म इथेनॉल यूज कर लोगे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला इथेनॉल यूज कर लोगे तो डीएनए की यील्ड नहीं आएगी अच्छी। और जो एक्सट्रैक्ट है उसको अच्छे से फिल्टर करना है ताकि ज्यादा कंटेमिनेशन ना आए। तो अब आप लोग अपना एक बार माइक ऑन करके बता दो कि आपको समझ में आया है या मैं दोबारा एक बार बताऊं। वो जो लास्ट सॉरी। इथेनॉल ऐड किए, जब हम यस यस। इथेनॉल ऐड किए एंड हाँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज हो गया, तो हम्म। फिर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ, जब हमने इथेनॉल डाला, व्हेन वी एडेड द इथेनॉल, इथेनॉल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से कम होता है। मैं आपको लिख के बताती हूँ। सी, आपने सबने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है ना, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। सो ये सब चीजें छोड़ो, मेन ये जो चीज होती है यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, अगर मेरा मीडियम है तो इसके साथ के आता है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो चार्जेस के अंदर फोर्स कम हो जाएगी, है ना। तो अब मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ गया। इथेनॉल का होता कितना है मैं एक बार बताती हूँ, आप एग्जैक्ट वैल्यू बताती हूँ, उससे ज्यादा समझ आएगा। मुझे लगता है मैंने खुद मैस कर दिया इसमें। हाँ, तो हाँ, सही सही बता रही हूँ मैं। जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, और जो इथेनॉल होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अबाउट 24.3 होता है। तो देखो पानी के केस में क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, फोर्सेस कम होंगे, मतलब को जो डीएनए के जो थ्रेड्स हैं उनके आपस में अट्रैक्शन कम है, तो वो क्या होंगे, मिक्स फॉर्म में होंगे, अलग अलग होंगे। पानी के अंदर हमें इस तरह से दिखेंगे वो, आई मीन दिखेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो सॉल्युबल है। अब मैंने जब इथेनॉल डाला, इथेनॉल डालने पे क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो गया। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो गया तो फोर्सेस क्या हो गए, बढ़ गए।
फोर्सेस बढ़ गए मतलब ये थ्रेड्स आपस में अट्रैक्शन होने लगी, तो ये थ्रेड्स इस तरह से आ गए पास पास, तो जिससे क्या हुआ कि मेरा डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया। यू गॉट इट? हाँ, now it's clear. ओके। Thank you. एनीवन एल्स हैव एनी इशू विद इट? भैया प्लीज रिस्पॉन्स कर दीजिए। यार मेरी आवाज सुन रही है? नो दीजिए, ओके ओके। सो विल प्रोसीड फर्दर। अरे भाई ये सब क्या हो गया? ओके। अब ऐसा सा ही एक एग्जाम्पल है मेरा, आई मीन मैंने ही किया था ये भी एक्सपेरिमेंट। जो अब आपका डीएनए का सोर्स है, इट कैन बी अ प्लांट सेल, इट कैन बी अ एनिमल सेल, इट कैन बी अ बैक्टीरियल सेल, राइट? सो यहाँ पे अब हम कर रहे थे प्लांट से, लीव्स से डीएनए आइसोलेट कर रहे थे। अब मैं पहले थोड़ा सा आपको ना समझाती हूँ, ठीक है? यहाँ यहाँ से आपको मैं समझाती हूँ थोड़ा सा। जैसे ये हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल की पेरिफेरी में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, सेल के बाहर सेल की मेम्ब्रेन, इसके अलावा सेल के बाहर सेल वॉल। सो अगर मुझे डीएनए को आइसोलेट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ये मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स वगैरह हैं और जो बाकी के ऑर्गेनेलीज, इन सब का भी मुझे गेट रिड करना पड़ेगा। आई मीन हैव टू गेट रिड आउट ऑफ इट, नो? उसके बाद ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, इसको भी डिसरप्ट करना पड़ेगा, देन ओनली आई विल बी एबल टू रीच द डीएनए। बट जो डीएनए है इट इज ऑल्सो नॉट इन प्योर फॉर्म, ये भी न्यूक्लियोलस की फॉर्म में, क्रोमेटिन की फॉर्म में, क्रोमोसोम की फॉर्म में बैठा हो सकता है। सो ये इसका जो प्रोसेस होता है, इसको प्योरिफिकेशन का, वो फर्दर होता है आइसोलेट करने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइसोलेट इट फ्रॉम द सेल। तो हमने क्या किया, ये लीव्स लिए, ये हमारा टिश्यू सैंपल है, लीव्स लिए, उसको वे कर लिया 1 ग्राम, 1 ग्राम के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन होती है, ठीक है? तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बस प्रिंसिपल समझना है कि हाउ वी विल आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द टिश्यू। तो हमने क्या किया कि इसमें लिया, टिश्यू लिया, उसको मैकेनिकली डिसरप्ट किया, और डिसरप्ट करते करते हमने इसमें एक एक्सट्रैक्शन मिक्सचर डाला। अब वो डिटर्जेंट वाला मिक्सचर नहीं होता, इसमें सी टैब होता है, लाइसिस बफर होता है बेसिकली। तो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी कॉम्पोजिशन वगैरह का इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली देखो, हमने इसमें एक वैसा सा ही एक एक्सट्रैक्शन मिक्सचर डाला, जिससे कि इसकी सेल वॉल तो हमने मैकेनिकली लाइज कर दी ना मोटाइल वेसल से। जो इसकी मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करने के लिए डिटर्जेंट था, वो मैंने एक्स्ट्रा से ऐड किया उसमें, पाउडर्ड फॉर्म में, प्योर डिटर्जेंट, सी टैब हो सकता है वो। और फिर हमने ये जो प्रोटीन्स वगैरह थे, इनको आइसोलेट, इनको सॉल्ट इन करने के लिए, सॉल्ट आउट करने के लिए हमने सॉल्ट ऐड किया। और ये जरूरी नहीं है कि इट विल बी NaCl एंड ऑल, इट कुड बी अ मिक्सचर। तो हम सॉल्ट डालते हैं इसमें, और फिर उसके बाद इसे अच्छे से क्रश करते हैं, मिक्स करते हैं। इसके बाद इसे हम इन एपेंडॉक्स में ट्रांसफर कर दिया, ये एक ही मिक्सचर है, छोटी छोटी एपेंडॉक्स में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद अब हमें इंक्यूबेट करना होता है। इंक्यूबेशन का क्या है कि उसे एक पर्टिकुलर टाइम मिल गया, पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल गया, ताकि वो अच्छे से जो डिसरप्ट हो सके मेम्ब्रेन्स। यू गॉट इट ना? भाई चैट पे मत बताओ, आई हैव नो हाँ एक्सेस टू चैट। सो ओके ओके। दीदी, हो गया। आफ्टर दैट we'll the centrifuge. last Yes, yes. I I can't hear you.
दी द लास्ट स्टेप, जो आपने बोला ट्रांसफर कर दिया उसके बाद। इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने का मतलब है कि हमने उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जिससे कि वो जो मेम्ब्रेन्स है वो अच्छे से डिसरप्ट हो सके। यूजुअली ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रहता है क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो भी फिर थोड़ा डीनेचर वगैरह होने लगता है। सो दैट्स वाई हमने प्रोटीन्स वगैरह को डीनेचर करने के लिए एक ऑप्टिमल रेंज होती है। लैब टू लैब वैरी करता है ये टेम्परेचर। हर लैब को अपने हिसाब से स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। उसके बाद हमने इसे सेंट्रीफ्यूज में लगा दिया। ये रोटर है, ये सारी हमारी ट्यूब्स हैं। और इसको बैलेंस करके रखना होता है, जैसे यहाँ है यहाँ बैलेंस करके रखना है। उसके बाद इसे आरपीएम पे घुमा दिया, 13,000 आरपीएम पे। ये डजेंट मैटर, पैरामीटर्स डजेंट मैटर फॉर यू। सिंपल देखो कि आपने उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। अब सेंट्रीफ्यूज करने पे आपको पता है कि एक सुपरनेटेंट आ जाता है और एक आती है पैलेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल लाइसेट है ना, तो ये हमारा सेल डेब्रिस है और ये ऑर्गेनिक फेज आया है। इसमें हमने ये जो सुपरनेटेंट है इसी में हमारा डीएनए। समझ में आ रहा है ना आपको? सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। दीदी हाँ दी, सेंट्रीफ्यूज समझ के गया। बाद हमारे टोटल 3 लेयर्स आए हैं क्या? 3 लेयर्स आए हैं, बिल्कुल। इसमें अब प्रोटीन वगैरह है, ये वाले में हम्म। प्रोटीन वगैरह है, ये सेल डेब्रिस है, और इसमें हमारा डीएनए, डीएनए आरएनए। ओके, तो इस स्टेज में जो डीएनए होगा, क्या वो यस। हिस्टोन्स के साथ अटैच्ड होगा या फिर वो सेपरेट हो चुका होगा? हाँ, वो पूरा एकदम लेंथ में नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत शेयर हो जाता है क्योंकि हमने सेंट्रीफ्यूज भी किया है, हमने मैकेनिकली लाइज भी किया था। तो उसमें वो न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियोलस में, सॉरी, क्या होता है, न्यूक्लियस फॉर्म्स के साथ बाइंडिंग फॉर्म में ही रहता है। अच्छा, तो फिर जो प्रोटीन्स पेलेट में आए हैं वो सेल के बाकी प्रोटीन्स हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये डेब्रिस है जो इसमें ऑर्गेनेलिस वगैरह है, डिसरप्टेड सेलुलोज है, वो सब चीजें, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मेन इससे है। ओके ओके यू ओके। गॉट इट नो? अब हाँ हाँ, हमने आई क्या गॉट किया, इट। इसे एक पर्टिकुलर एपेंडॉफ में डाला। एपेंडॉफ में डालने के बाद वी एडेड दिस चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल के बाद ये देखो, ये थ्रेड्स है डीएनए के, दिख रहे हैं? तो अब मैं कैसे कंफर्म करूं कि ये डीएनए ही है या कुछ और है? एनी आइडिया? भाई नहीं पता तो बोल दो कि नहीं पता, आप बता दो। हम जैसे आरएनएज और प्रोटीनेज डाल के बाकी सबको हटा देंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि सिर्फ डीएनए ही प्रेजेंट है हाँ गुड और गुड, बाकी एक सब ये तो हट मेथड हो गए। सकता है कि हम आरएनएज और प्रोटीएज और डीएनएज तीनों डाल के देख लें। आई मीन 3 एलिक्यूट कर लें इसके। उसके बाद हम चेक कर लें कि ये डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है, राइट? और इसके अलावा, बट इससे तो अगर मैं डीएनएज डाल दूंगी तो डीएनए तो डिसरप्ट हो जाएगा। मेरे को तो आइसोलेट करना था। कुछ ऐसा मेथड बताओ जिससे कि, ये मेथड अच्छा है, सही है ये मेथड भी, लेकिन द थिंग इज दैट कि मेरे को फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी ना डीएनए आइसोलेट करने के लिए। मेरे को डीएनए चाहिए, मेरे को इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, इसका एगरोज रन करके देखना है, आइडेंटिफाई करना है। तो कोई दूसरा मेथड? तो हम क्या करते हैं कि इसका स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस मीन्स, आपको पता है डीएनए में बेसिस होते हैं, उन बेसिस में हम्म। एरोमेटिक रिंग्स होती हैं। रिंग्स होती है ना, रिंग्स, पाई बॉन्ड्स। अब पाई बॉन्ड्स क्या है कि अगर आप इसको लाइट दोगे तो ये क्या करता है, डिलोकलाइज करता है। आई मीन पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हम इस एब्जॉर्बेंस को मेजर कर लेते हैं। इसी तरह से जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में भी हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलनिन। तो इनकी वजह से भी
जो प्रोटीन्स हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो प्रोटीन्स है वो करेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्ब करते हैं, उनका मतलब हर वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन वो 280 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेंगे। इसी तरह से जो हमारा डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो सब लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो 260 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं। सो हमने क्या तरीका निकाला, we'll measure the ratio 260 to 280। अब अगर मान लो प्रोटीन ये इस सोल्यूशन की, इसको डिसॉल्व करते हैं फर्दर। एक टीई बफर होता है, टीई बफर में अ, इसको अभी पहले एक और बार सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसकी पैलेट बन जाती है। अब उस पैलेट को फिर हम टीई बफर में डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद डीएनए में सोल्यूशन जैसा दिखता है। अब उस सोल्यूशन में से हम कुछ निकाल के, कुछ आई मीन 1 माइक्रोलीटर या 2 माइक्रोलीटर निकाल के उसे हम उसकी रेशो मेजर करते हैं, उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। ओके, सो व्हाट विल डू, सी, अब अगर वो सोल्यूशन में डीएनए होगा तो वो 260 पे मेजर करेगा। आई मीन 260 पे उसका पीक आएगा। एब्जॉर्ब तो वो सब पे ही करेगा, लेकिन 260 पे पीक आएगी उसकी। लेकिन अगर वो डीएनए हुआ तो 260, लेकिन अगर वो प्रोटीन हुआ तो फिर वो 280 पे ज्यादा मेजर करेगा। वी आर गेटिंग दिस स्टेप और नॉट? सो व्हाट वी आर डूइंग कि हम 260 की एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं, इसकी कोई वैल्यू आ गई, लेट अस सपोज x, और 280 पे देखा, 280 की वेवलेंथ डाल के इस पे देखी तो उस पे एक एब्जॉर्बेंस आई y। तो हम x बाय y का रेशो लेते हैं। तो अगर मेरा डीएनए प्योर है, सो इसकी जो वैल्यू होगी इट शुड बी बिटवीन 1.8 टू 1.9। अगर आपका इतना आ रहा है तो इट इज प्योर। 1.8 is considered as the most pure DNA. You got it or not? या ये वाला स्टेप एक बार दोबारा बता दूं? भाई मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप लोग इसको देख के और सो गए हैं। यार इतना बुरा पढ़ा रही हूँ क्या मैं? दी क्यों? समझ आया, हमने रिप्लाई किया था। ओके ओके, हाँ अभी देखा मैंने। ओके, सबको समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़ूं? हाँ, आगे चलते हाँ हैं। दी। ओके ओके, सो इन द सेम वे ये वही है, बनाना से आइसोलेट किया था जब, और ये मैंने ब्लड से भी आइसोलेट किया था डीएनए। अच्छा दीदी, एक डाउट। हाँ बोलिए। हम जैसे प्लांट्स लिए तो हमने उसमें मैकेनिकल लाइसिस करके उनका सेल वॉल ब्रेक किया, यस, बट एनिमल सेल में तो कोई सेल वॉल है ही नहीं। तो हाँ हम उसके लिए उसको अगर, प्रोटोकॉल अलग होता है। हाँ उसके लिए अलग प्रोटोकॉल होता है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, हर तो एनिमल उसमें से, मोटर पेस्टल कुछ नहीं करेंगे वैसे? नहीं नहीं, उसे मोर्टल पेशल से नहीं करते हैं। अच्छा, उसके लिए ओके। हम डायरेक्ट केमिकल लाइसिस यूज करते अच्छा, हैं। ठीक है केमिकल्स ही फिर। होते हैं, वही हम डालते हैं, उसी में सस्पेंड करके हम यूज करते हैं। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन है आप लोगों से। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने ब्लड से डीएनए आइसोलेट किया, और अच्छा ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के वजह से। कौन से सेल की वजह से होता आरबीसीज। है ना? आरबीसी की वजह से होता है। पर आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, डीएनए तो न्यूक्लियस में है। तो मैंने ब्लड से कैसे डीएनए आइसोलेट कर लिया? WBC। हाँ, गुड, डब्ल्यूबीसी से आइसोलेट किया। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और हम डब्ल्यूबीसी पहले पहले आरबीसी नीचे आ जाते हैं सारे, डब्ल्यूबीसी भी। उसके बाद हम सिलेक्टिव लाइसिस करते हैं उसकी, क्योंकि आरबीसी में तो है ही नहीं ना, आरबीसी में तो दीदी है ही नहीं। RBC नीचे कैसे आया? सेंट्रीफ्यूज। अच्छा।
हम्म, ठीक है, यू गॉट इट नो एवरीथिंग। अभी मुझे लगता है कि आपको एक बार मीटिंग दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है कि 4:30, आई मीन 4 मिनट और 30 सेकंड दिखा रहा है मीटिंग टाइम। सो या तो फिर हम बस डीएनए करते हैं आज, आरएनए का कल कर लेंगे। आपको समझ में आ गया अच्छे से? अब ना इसका जो लिटरेचर है ना, वो मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी, उससे आप उसे पढ़ लेना। और एक लिंक दे दूंगी जिससे कि आप उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। और कल मैं एक बार आरएनए का पढ़ाने से पहले एक बार क्वेश्चंस पूछ, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, वो मैं एक बार पूछ लूंगी आपसे। इज इट फाइन? एनी अदर यस जी। कंसर्न्स, डाउट्स, यू कैन आस्क। और मीटिंग को थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, ताकि फिर हमें पूरा टाइम मिल सके, 30 मिनट्स प्रॉपर। एक्चुअली दी मैं ट्राई करती हूँ बट मेरा ज्वाइन नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, वो कनेक्ट होता ही नहीं है, फिर लाइक 10 मिनट्स चले जाते हैं फिर बाद में ज्वाइन होता है। ओके लास्ट डे भी ऐसे ही हुआ था। ओके ओके। कौन बोल रहा है ये? आप अपना नाम भी बता दो। ओ अनुराधा। ओके। आई आज तो मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, मैंने कहा कि सारे एक बार ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं अगर जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ तो फिर वो उतना ही टाइम लेते हैं। अभी देखो हमने कब स्टार्ट किया था, 10:45 पे, राइट? नहीं, 10:50 पे। 40 मिनट का ही होता है ना जूम में। सो ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें इसकी जो थ्योरी होगी, जो जो मेन मेन चीजें आपको चाहिए डीएनए आइसोलेशन के लिए, वो लिखी रहेंगी उसमें, वो आपने देख लेनी है, एक बार गो थ्रू कर लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो। और आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स चूज कर लिए कि ऐसे पूछेंगे कि अ, आपका मोस्ट थोरो सब्जेक्ट कौन सा है, तो क्या बताओगे? भाई बोलने की आदत लगाओ तुम, अगर बोल नहीं पाओगे तो वहां कैसे बोलोगे इंटरव्यू में? ये अपनी जो हेजिटेशन है ना, अंदर की शर्म है, इसको खत्म कर दो भाई। डिसाइड नहीं किया दी अभी तक। ओके ओके, डिसाइड कर लो टाइम पे। अपनी जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो।